Hello everyone, I am Sudhakar. In this video, we will be sharing the experience of Mr. Abhishek Kumar Ranjan, who has been placed as a Computer Science Engineering Associate in Sysmex Corporation, Japan. Before we listen to Abhishek, I would like to introduce him formally to our viewers. Abhishek is a final year MTech student in the Center of Studies in Resources Engineering, also known as CSRE at IIT Bombay. For his MTech project, he is working on incremental learning for land use and land cover classification. During his MTech, he has also participated in Summer of Science, where he worked on real-time hand gesture tracking using deep learning. He has also held various positions of responsibility, like working as a department coordinator for Institute Student Companion Program at IIT Bombay. He completed his BTech in Civil Engineering from NIT Trichy in 2018. Without further delay, I would request Abhishek to share his experience of getting placed in Sysmex Corporation, Japan. Thank you, Abhishek. Thank you for accepting my request. Thank you, Sudhakar, for inviting me. Yeah, Sysmex Corporation. Yeah. So first of all, could you please tell us a bit about the company for which you have been selected, like Sysmex Corporation Japan, and the profile which you have been offered? Yeah. So Sysmex Corporation is a healthcare company, and it is generally dealing with biomedical equipments, and it makes softwares related to clinical things. So it offered Computer Science Engineering Associate profile in IIT Bombay, which is a R&D profile. So as we know that at present Sysmex is working on manufacturing biomedical equipments and clinical software. So now what their aim is, they are trying to integrate artificial intelligence in their these equipments. This company was established in 1978, so it is a bit old company. So now they are trying to integrate these new technologies into their equipments. So that was their major aim of providing role at IIT Bombay. And the JAF which they opened, in that they have included everything, like they want electronics also, IoT, deep learning, machine learning. So when I was interviewed, my interview was mainly on deep learning and machine learning, and I think it got highly related to their work. That's why they offered me this role. Okay, so you mentioned that Sysmex Corporation, they are planning to use or employ AI and machine learning in their medical equipments. So I am just curious, what will AI and ML serve? मतलब AI ML कैसे equipments में क्या achieve करके देगा उनको? तो जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूं, तो जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा प्रोजेक्ट है इंक्रीमेंटल लर्निंग, तो तुम इसको कैसे अप्लाई करोगे। तो मैंने क्या बताया उनको कि सर जैसे अभी कोरोना का टाइम है, अभी क्या हो रहा है कि डॉक्टर्स भी एकदम डिस्टेंस से एक दूसरे को इलाज कर रहे हैं। और फिर मैंने उनको दूसरा एग्जांपल एक और ये दिया था कि हमारा जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा में क्या होता है कि हम सबको एक जैसी ही ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट करके एक सेगमेंट है जिसपे अभी बहुत ज़्यादा अभी रिसर्च चल रही है। मतलब डिफरेंट बॉडी इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो डिफरेंट बॉडी नीड डिफरेंट ट्रीटमेंट। सो इससे उनको काफ़ी अच्छा लगा था। और ये क्या है, अगर इसको हम साइंस से करना चाहते हैं तो साइंस क्या है, पूरा का पूरा डेटा रिक्वायर करता है। तो डेटा क्या है, जहाँ डेटा की बात आ गई तो वहाँ पे ML AI लगेगा ही। तो ये एक एग्जांपल दिया था। और दूसरा मैंने दिया था कोरोना के लिए कि हम अभी यूज़ कर सकते हैं रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोटिक सर्जरी में क्या होगा कि रोबोट को हम ट्रेन करेंगे। और मेरा प्रोजेक्ट जैसे है इंक्रीमेंटल लर्निंग फॉर लैंड यूज लैंड कवर क्लासिफिकेशन। सो उसमें क्या कर रहे हैं हम कि हमको अगर कोई मैप दिया हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंटली लर्न कर रहे हैं। जैसे क्या है कि आपको एक एल्गोरिथम आपने ट्रेन कर दिया, आपको वो रोड बता देगा, आपको फॉरेस्ट एरिया बता देगा, आपको रेलवे ट्रैक बता देगा। उसके बाद अगली बार आपको मॉडल को दोबारा ट्रेन नहीं करने की जरूरत है, वो आप उसको एक दो इमेज दिखाएंगे, वो पहचान जाएगा कि न्यू क्लास क्या है। तो उसी तरीके से मैं बताया कि इसको अगर हम रोबोटिक्स में भी ऐसे ले आएँ हेल्थ केयर डोमेन में, तो काफ़ी सही हो जाएगा। तो ये एक आगे की टेक्नोलॉजी जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो उनको ये अच्छा लगा था, वो बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे थे ये सारी चीज़ें।
ओके ओके, या इट रियली साउंड्स एक्साइटिंग और काफी फ्यूचरिस्टिक एम है। लाइक जो तुमने आयुर्वेदा की बात किया, जो तुमने ये बात की कि हम पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो या आई थिंक इंक्रीमेंटल लर्निंग माइट बी द बेस्ट शॉट फॉर देम। और इस तरह से काफी चीजें सॉल्व की जा सकती हैं डेफिनेटली। तो ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट द कंपनी एंड द प्रोफाइल विच यू हैव बीन ऑफर्ड, एंड उस जैफ में बहुत सारी चीजें मेंशन की थी, जैसे तुमने बताया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स था, इलेक्ट्रॉनिक्स था, बट तुम्हारा चूंकि AIML का था तो दे फोकस मेनली ऑन AIML एंड दे हैव हायर्ड यू फॉर दैट रोल ओनली, एंड दिस इज एन R&D प्रोफाइल। ओके, और ये ओके तो ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। बट जो एक नॉर्मल और जो क्वेश्चन बनता है तुम्हारी प्रोफाइल को देखते हुए, दैट यू डिड योर बीटेक फ्रॉम NIT Trichy इन सिविल इंजीनियरिंग, है ना, फिर उसके बाद CSRE में तुम आए यहाँ मास्टर्स करने के लिए, तो वो ठीक है, सिविल से CSRE का ट्रांजिशन इज समवॉट जस्टिफाइड, बट देन सिविल से AIML का ट्रांजिशन, हाउ डू यू सी थिंग्स एंड हाउ डिड यू मैनेज? मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट था या तुमने यहाँ आने के बाद सीखा, कैसे ये ट्रांजिशन हुआ तुम्हारी लाइफ में? जैसे अब इसके लिए मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा और थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा इसको। जैसे जब मैं 12th क्लास में था तभी मेरे को कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो 11th-12th में मैंने C++ पढ़ा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। और फिर जब मैं इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया तो वो क्या होता है कि 12th के बाद उतने हम मैच्योर नहीं होते, तो फिर वो JEE का एग्ज़ाम लिखा, जो मिल गया वो ले लिया। तो वो क्या है, एक तरीके से फोर्सफुल टाइप था कि लेना पड़ा। अब मैं आ तो गया वहाँ पे, पर मुझे मन तो नहीं लगता था, बट फिर भी मैंने अपने आप को उसमें डिवोट किया और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की। बट फिर जब वहाँ पे प्लेसमेंट की बारी आई तो प्लेसमेंट हुआ मेरा, अच्छी जगह हुआ, बट जो सीनियर्स काम कर रहे थे 2 साल 3 साल 4 साल से, किसी का अच्छा फीडबैक नहीं था और सब क्या है कि छोड़ के जा रहे थे। तो उसी टाइम क्या है कि हमारे कुछ सीनियर्स थे जो प्रिपेयर करते थे IAS UPSC, IAS इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम होता है UPSC का, और काफ़ी बड़ा एग्जाम होता है, बहुत रेप्यूटेड एग्जाम है। तो उसकी तरफ मेरा थोड़ा फोकस चला गया, तो मैं गेट और इसके लिए प्रिपेयर करने लग गया 4th ईयर में, और मैंने उस ईयर गेट भी लिखा और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। बट मैंने उस ईयर MTech ज्वाइन नहीं किया, मतलब उस ईयर भी कर सकता था। तो फिर मैं 1 साल रुका, दिल्ली में आया, प्रिपेयर किया अच्छे से इंजीनियरिंग सर्विसेज का और PSUs के लिए, बट मैं फेल हो गया मेरा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि चलिए MTech चलते हैं। अब MTech में भी मेरे पास 2 ऑप्शन था, एक था कि आपको कोर में ही चले जाऊं और एक था कि थोड़ा सा स्विच करें इंटरडिसिप्लिनरी में। तो फिर मेरे पास दोनों ऑप्शन आए, इंटरडिसिप्लिनरी में जियो इन्फॉर्मेटिक्स मिला IIT बॉम्बे, और सिविल में जो बेस्ट ब्रांच होती है स्ट्रक्चर, मेरे को IIT कानपुर में मिली थी। अब दोनों में बहुत ज़्यादा टफ था कि मैं किसको चूज़ करूं, और उस दौरान करीब मैंने 20 लोगों से बात की होगी, कोचिंग के प्रोफेसर से, फिर अपने कॉलेज के प्रोफेसर से, कई सारे जो पढ़ रहे थे उनसे, सबका मिला जुला के फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को जियो इन्फॉर्मेटिक्स लेनी चाहिए। यहाँ पे आया, और मैं सच्ची बताऊँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब मुझे नहीं पता था कि इस डिपार्टमेंट में होता है। मैं बस ये सोच के आया था कि यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है, मतलब यही था मेरा, इसीलिए आ गया था मैं। और फिर जब आया, यहाँ पे आया, तो सच्ची बताऊँ तो यहाँ पे आने के बाद मेरे को इतना अच्छा लगने लग गया कि प्रेशर पड़ा, बहुत प्रेशर पड़ा फर्स्ट सेमेस्टर में, बट मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरी 12th क्लास की, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कोडिंग में और मैथमेटिक्स मेरा बहुत मजबूत था। तो ये पूरा का पूरा आपका मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरा मैथमेटिक्स के ही एल्गोरिदम्स होते हैं। तो मेरे को काफ़ी रिलेट हो गया ये डिपार्टमेंट, काफ़ी ज़्यादा रिलेट हो गया। और फिर इसी दौरान फिर मशीन लर्निंग सब्जेक्ट, इमेज प्रोसेसिंग करके सब्जेक्ट्स हमको पढ़ाए गए, वो हमको रिमोट सेंसिंग डोमेन में पढ़ाए गए, बट अभी के टाइम में वो हर एक जगह अप्लाई हो रहा है, हेल्थ केयर में, इवन आपको बिजनेसेस में, मार्केटिंग्स में, तो हर जगह अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से मेरा जो प्रोफाइल था वो AI/ML का बन गया। तो ये था, हाँ, CSRE से फिर ML/AI में हो गया हमारा। इट साउंड्स क्वाइट इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। मुझे भी काफी सही लगा सुन के कि आई कुड रिलेट सम ऑफ द थिंग्स कि तुमने चीजों को देखा, फिर चीजें जैसी जैसी होती गई, यू फॉलोड, तुमने पूरी मेहनत की। डेफिनेटली तो जो चीज हमारे मन में होती है, कहीं ना कहीं वो चीज हमें फिर मिल भी जाती है, अगर हम इफ वी कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग, देन एट सम पॉइंट और द अदर वी अचीव दोस थिंग्स, और एटलीस्ट वी गेट अ चांस टू अचीव दोस थिंग्स।
या तो ये बस इसके बाद अब हम लोग इस बारे में थोड़ा तुम तो जैसे कि तुम्हारे केस में ये हुआ लाइक कि 18 में आपने बीटेक किया, फिर आपने 19 में सीएसआरई में एडमिशन लिया, तो इस 1 साल का गैप था, तो इससे कहीं कोई दिक्कत या कोई क्वेश्चंस आए आपकी लाइफ में कि लाइक ये गैप क्यों है, किसी ने पूछा इस बारे में? तो आपके इंटरव्यू में जो यहाँ इंटरव्यू हुए होंगे आईआईटी बॉम्बे में, तो किसी ने कुछ किसी कंपनी ने इस पे क्वेश्चन खड़े किए थे? नहीं, 1 साल का गैप आई थिंक इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्योंकि एमटेक तो बहुत लोग 2-2 3-3 साल के बाद भी आते हैं करने के लिए, कोई जॉब करके आता है, तो 1 साल का गैप कोई उतना बड़ा मायने नहीं रखता है। और मेरे को तो इस पॉइंट पे किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा, और अगर पूछते भी तो इसको मैं उस तरीके से प्रोजेक्ट कर देता अच्छे से कि मतलब ये 1 साल में जितना मेरे को सीखने को मिला और जितना स्ट्रगल से हम इम्प्रूव हुए, तो उस तरीके से थोड़ा प्रोजेक्ट करके मैं बता देता, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ। सही बात है। ठीक है अभिषेक, अब थोड़ा सा हम इस बारे में बात करते हैं कि सिस्मस कॉर्पोरेशन का जो ये जैफ था, तुम्हें याद है कि फॉर हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स और फॉर व्हिच डिपार्टमेंट दिस जैफ वाज ओपन? ये सिस्मैक्स कॉर्पोरेशन का जो जैफ आया था, ये पूरे इंस्टीट्यूट के लिए ओपन था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अच्छा, तो सब कोई भर सकते थे इसको। ओके, एंड कोई सीपीआई कट ऑफ था क्या इसमें, सीपीआई वगैरह? हाँ, सीपीआई कट ऑफ इनिशियली इन्होंने 8 रखा था। तो वो क्या था कि शुरू में 8 में बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया होगा, फिर कुछ दिन बाद एक और एक ब्लॉग पे एक आया था कि आपको अगर सीपीआई 8 से कम है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप उनके लिए एक अलग सेपरेट लिंक उन्होंने प्रोवाइड की थी। तो आई थिंक सीपीआई फिर 7.5 कर दिया था उन्होंने। ओके, तो सीपीआई ठीक है, तो मतलब फाइनली दोज हु आर हैविंग सीपीआई 7.5 और अबव दे कुड अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, है ना? और तो पता है कि ये पूरे इंस्टीट्यूट के लिए ओपन था मोर और लेस, सबके लिए पूरा, कोई रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, तो जैप अप्लाई हमने कर लिया, तो जैप साइन करने के बाद फिर टेस्ट हुआ था या कैसे था? मतलब तुम जरा ये बताओ कि जैप साइन करने के बाद क्या क्या प्रोसेस हुआ फॉर सिलेक्शन? तो जब इसका जैफ खुला तो जैफ में ही काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी कि आप इसमें क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसमें उन्होंने सब कुछ डाल दिया है, उनको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मतलब सब कुछ डाल दिया था इन्होंने A to Z। और उसके नीचे फिर उन्होंने एसओपी मांगा था, एसओपी का रिक्वायरमेंट था, जिसमें सिस्मैक्स के लिए जैसे मैंने दूसरी जापानीज कंपनी के लिए भी भरा था एसओपी, बट सिस्मैक्स का काफ़ी डिटेल्ड एसओपी इन्होंने मांगा था। और उसमें जैसे इन्होंने 3-4 चीज़ें मांगी थी कि आपका मोटिवेशन क्या है, फिर आप अपने वर्क को इससे कैसे रिलेट करते हो, फिर आप जापान क्यों आना चाहते हो, फिर आप अपने आप को 5 से 6 साल बाद कहाँ देखते हो, मतलब करियर प्रॉस्पेक्ट क्या है आपका। तो हमको हर एक पे करीब 100-200 वर्ड लिखना था। तो ऐसे करके 4-5 पेज का काफ़ी डिटेल्ड एसओपी इन्होंने मांगा था। एसओपी और फिर रेज्यूमे भी जैसे हम लोग 2 पेज और 1 पेज का बनाते हैं, तो जनरली हम लोग इसमें जापानीज कंपनी में हमारे सीनियर के रिकमेंडेशन से 2 पेज का डाले थे। तो 2 पेज रेज्यूमे, जो कि रेज्यूमे भी काफ़ी डिटेल हो जाता है 2 पेज का, फिर ये 4-5 पेज का एसओपी। तो एक तरीके से ये एसओपी और रेज्यूमे, ये दोनों ही एक मेजर फिल्टरिंग प्रोसेस था। वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं एसओपी को भी और फिर रेज्यूमे को भी। तो ये दोनों से ही उन्होंने काफ़ी अच्छे से फिल्टरिंग की थी। तो जैसे मैं आपको अगर स्टैट्स दूं तो जब इसके इंटरव्यू कॉल आए थे तो टोटल इंस्टीट्यूट के ओपन होने के बावजूद भी इन्होंने केवल एसओपी और रेज्यूमे से केवल 8 बच्चों को सेलेक्ट किया था फॉर इंटरव्यू पूरे इंस्टीट्यूट में। तो मतलब पूरा अच्छे से, और इनको एक एक चीज़ देखते हैं, पूरा का पूरा अगर रिलेट हो गया तो उस वहीं पे लगभग कह सकते हैं 50% सिलेक्शन हो गया कि उनको बंदा तो पसंद आ गया है, अब इंटरव्यू में देखने हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो तुमने ये बताया कि रेज्यूमे और एसओपी वर द मेन फैक्टर्स टू गेट सिलेक्टेड, और तुमने ये भी बताया कि 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के लिए। तो इसका मतलब कोई टेस्ट वगैरह नहीं हुआ था इसका, सिर्फ जैप साइन करो एसओपी और रेज्यूमे से और आपका फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा।
तो तुम थोड़ा सा एसओपी के बारे में थोड़ा सा, जैसे तूने बताया कि एसओपी में लाइक 4-5 क्वेश्चन थे कि आपका मोटिवेशन क्या है, आपका वर्क कैसे रिलेटेड है उनके जॉब से, या आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, या आप जापान क्यों आना चाहते हैं, इन सब चीजों को तो थोड़ा सा इसके बारे में तो थोड़ा सा अगर बता सकोगे, लाइक तुम्हारा आंसर क्या था। लाइक ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि सीएसआरई में सीनियर्स काफी अच्छा गाइड करते हैं, एंड यू गाइस गेट अ वेरी वेरी गुड लेगेसी आई कैन से, जो कि चली आ रही है काफी सालों से। तो तुम थोड़ा सा अगर ये बता सकोगे, लाइक अगर हम हर क्वेश्चन को लेके चलें कि जैसे मान लो तुम्हारा मोटिवेशन क्या था, अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो हाउ डू यू फ्रेम द आंसर, मतलब ऑफ कोर्स जो अगले बैच आएंगे दे कैन रियली इंप्रूव ऑन दोज आंसर्स, बट व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच वन शुड कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ऐसा करके हम चारों क्वेश्चन को थोड़ा सा बात करते हैं, लाइक 1-1 मिनट ऐसा करके। तो इसको जैसे एक मैंने टेक्निकल एस्पेक्ट से भी लिखा था और एक नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट से भी। तो टेक्निकल एस्पेक्ट से ऐसे लिखा था कि जैसे मैं सीएसआरई में आया तो मैं अभी जो चीज़ पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो मेरे को काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है, और इसमें जैसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो वो इंक्रीमेंटल लर्निंग जो मैंने प्रोजेक्ट है, तो जैसे ये जो मेरा एमटीपी है ना, मैंने हर जगह घुसाया है, तो वो मैंने वहाँ भी घुसाया था एमटीपी, और बोला था कि सर मैं ये एकदम अभी रिसेंट टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा हूँ, इसमें इंक्रीमेंटल लर्निंग पे भी, और ये हेल्थ केयर डोमेन में काफ़ी ज़्यादा रिलेट हो सकता है। तो टेक्निकल रूप से मैंने एमटीपी के थ्रू उनको ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ और मेरी टेक्निकल बैकग्राउंड भी काफ़ी साउंड है इसमें। और नॉन टेक्निकल वे में जैसे मैंने ये बोला था कि मेरे को जैसे क्या है, मैं सोशल आदमी हूँ और मेरे को क्या हेल्प करना काफ़ी अच्छा लगता है, और अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है, लोग कुछ मर रहे हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमको क्या है, हेल्थ केयर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और हेल्थ केयर डोमेन में काफ़ी ज़्यादा काम की ज़रूरत है अभी, मतलब जितना हुआ है उससे भी ज़्यादा काम की ज़रूरत है। तो उस थ्रू मैं क्या है, थोड़ा सोसाइटी को भी अपना गिव बैक करना चाहता हूँ। तो उस तरीके से भी थोड़ा लिख दिया था कि भाई मेरे को वो वाला भी एस्पेक्ट है। तो उस तरीके से दो मैंने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वे में अपना मोटिवेशन बता दिया। या तो आई गेस ये काफी अच्छा है, क्योंकि मास्टर्स के केस में एमटीपी बहुत रिसेंट होता है और उस पर हम काफी टाइम स्पेंड किया हुआ होता है हमने, तो वी कैन इजिली ट्राई टू कन्विंस समवन कि मेरा काम ऐसा है, आपका भी काम ऐसा है, तो आई माइट बी अ परफेक्ट मैच, और आई माइट बी अ गुड मैच फॉर द प्रोफाइल। वो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। और लाइक ये वाला तुम्हारा पॉइंट काफी इंप्रेसिव है कि तुमने यू आल्सो ट्राई टू शो कि दैट यू हैव एम्पैथी टुवर्ड्स व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, and you somehow, or you at least have the desire to work something for them, or work something for the betterment of humanity, for the sake of mankind at least. तो ये सब चीजें उनको कहीं ना कहीं अच्छी लगे कि that he has or he or she has a vision, तो आगे ये कुछ करेगा। तो ठीक है, तो मतलब मुझे लगता है कि ये काफी एक सही तरीका भी है लिखने का कि you try to show your technical skills as well as how you are as a person। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि लाइक आपका वर्क कैसे रिलेटेड है। तो आई थिंक तुमने बता ही दिया है, बट उसको, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में तुमने बताया कि मोटिवेशन क्या है, तो वहां पर तुमने बात की कि यू हैव द टेक्निकल स्किल्स, बट जहां पे ये है कि हाँ आपका वर्क कैसे मैच करता है, उसका आंसर तुमने फिर कैसे लिखा? तो वर्क में जैसे मैंने अपना ये पूरा एक एमटीपी को एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा हल्का सा डिटेल में, कि एमटीपी में हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसमें इंक्रीमेंटली क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब जैसे इसका छोटा सा एक एग्जांपल दूं, तो जैसे हम किसी एल्गोरिदम से अगर 3 क्लास में डिवाइड करना चाहते हैं तो हमको मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा। फिर अगर एक न्यू क्लास आ जाता है, तो मतलब अगर हमको 4 क्लासेस में उसको ट्रेन करना है मॉडल, तो हमको दोबारा ट्रेन करने में क्या है, रिसोर्स भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है। बट अगर इंक्रीमेंटली करें हैं तो हमको केवल एक ऐड करना पड़ेगा क्लासेस, एक टेक्निक लगा के, तो हमारे रिसोर्स भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। तो ये तो छोटे स्केल पे, अगर इसको लार्ज स्केल पे देखें तो फिर काफी टाइम बचेगा और काफी रिसोर्स बचेंगे। तो इसीलिए फिर मैंने उसको उस तरीके से रिलेट करने लग गया हेल्थ केयर डोमेन में। तो ये वाले एग्जाम्पल जो मैंने इंटरव्यू में दिए वो तो नहीं दिए थे, दूसरे एग्जाम्पल दिए। तो उससे मैं बताना चाहा कि सर इस तरीके से अगर हम हेल्थ केयर में भी रिलेट कर पाएँ, जैसे हम हेमोग्लोबिन हो गया, डीएनए हो गया, ये सारे, या फिर डिजीजेज हो गए, ये सारे के अगर हम लोग इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, तो उसमें अगर ये टेक्नोलॉजी भी आ गई तो क्या है, मशीन स्मार्ट होते जा रहा है, वो अपने आप डेटा भी कलेक्ट कर रहा है, क्लासीफाई भी कर रहा है,
और अगले बार के लिए और स्मार्ट होता जा रहा है। Yes. तो उस तरीके से थोड़ा लिखा तो हल्का सा रिलेट हो गया उनके साथ। ओके ओके, हाँ, और आई गेस थोड़ा आसान भाषा में लिखना ताकि उनको समझ में आए कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। समटाइम्स वी स्टार्ट राइटिंग इन वेरी हाई-फाई टेक्निकल वर्ड्स, बट वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस समझ पाएगी। बट अगर आप अपने काम को, अगर किसी को भी इनफैक्ट एनी लेमैन इज एबल टू गेट सम आइडिया ऑफ द वर्क व्हिच यू आर डूइंग, तो वो काफी अच्छी बात है। तो एक आसान भाषा में लिखना बहुत जरूरी होता है, और उसका एक ब्रॉड एप्लीकेशन दिखाना कि जो मैं काम कर रहा हूँ या चाहे जो मैं काम कर रही हूँ उसका एक बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है। दोज थिंग्स रियली पुट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, सामने वाले को समझ में आता है कि हाँ। तो ये 2 क्वेश्चन की बात हमने की। अच्छा, अगला एक जो ये वाला क्वेश्चन था कि हाँ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स, इसका तो तुमने भी बहुत तरह की तैयारियां की होंगी, मैंने भी इसके बड़े सारे आंसर सुने हैं। तुम बताओ, तुमने इसका आंसर क्या, मतलब तुम थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो कि हाँ इसका फ्रेम कैसे करें, इवन दो यू माइट नॉट वांट टू रिवील योर आंसर, बट एक आइडिया तुम दे सकते हो डेफिनेटली, अगर तुम्हें चाहिए मन करे तो दे दो। हाँ, तो इसका आंसर जैसे मैंने ऐसे लिखा था, और ये क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में भी पूछा अच्छा। था, तो मैंने दोनों जगह इसी तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया था कि मैं उनको पहले ये दिखाना चाह रहा था कि सर पहले मेरे को कुछ साल अच्छे से किसी लीडरशिप के अंडर में काम करना है, मेरे को सीखना है। जैसे मैं उनको ये बताया कि मैं जब CSRE में आया तो मैं 1 से 1.5 साल में ही काफ़ी कुछ सीखा और मेरे को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं सीखता गया। उसी तरीके से ये जो प्रोफाइल है ये एकदम मेरे इंटरेस्ट से मैच करता है, तो जब मैं इसमें काम करूँगा तो मुझे पता है कि बहुत मज़ा आने वाला है, मैं बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। तो शुरू में भले ही मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट कम करूँ, बट मैं किसी लीडरशिप के अंडर में काम करना चाहता हूँ, जिससे मैं अच्छे से सीखूँ और फिर धीमे धीमे कंट्रीब्यूशन चालू करूँ। फिर 4 से 5 साल काम करने के बाद फिर मैं अच्छे से कोई टीम, R&D टीम को लीड करना चाहता हूँ और किसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा प्रोजेक्ट किया था कि शुरू में मेरे को सीखना है। सीखना मतलब ये नहीं कि मैं वहीं पे जाके नई नई चीजें सीख रहा हूँ, मतलब हम काम भी करेंगे और सीखेंगे भी। हाँ, और फिर हम लीड करेंगे, ये बताया, इस तरीके से मैंने बताया। ग्रेट, अच्छा, काफी सही आंसर है। मुझे भी मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के कि अच्छा, हाउ कैन वी फ्रेम आवर आंसर, और हम उसको कैसे मोल्ड कर सकते हैं चीजों को। So that's why at some point of time, at several occasions, communication skills or how do you present or articulate your things, those things really matter. और तो ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। एक और जो ये क्वेश्चन है कि हाँ, why do you want to come to Japan or join some firm in Japan? इसका तो मुझे बहुत सारे लोगों, मुझे भी अभी लोगों से बात करके बड़े अच्छे के मिले। तुम्हारा साइड क्या था? What did you present as an answer? नहीं, इसका तो आंसर जो है वो मतलब सच बताऊं तो कुछ नया नहीं है, वही आंसर है कि जापान इज टेक्नोलॉजिकल हब, इट इज़ अ प्लेस ऑफ इनोवेशन। तो यहाँ पे आके मैं देखना चाहता हूँ कि लोग कैसे काम करते हैं, मतलब यहाँ का वर्क कल्चर में ऐसा क्या है, लोगों में ऐसी क्या क्वालिटी है कि इतना डेवलप कर गया। तो एक बार मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से यही सारी चीज़ें लिखी थी, और इंटरव्यू में भी उन्होंने यही पूछा था और मैंने पूरा अच्छे से इनको बोला था। हाँ, इंटरव्यू मैंने एक मस्त पॉइंट जो है मेरे पता नहीं नज़र पड़ गई थी कि मैं उनके कल्चर को ग्लोरीफाई, एक तरीके से क्या है कि जापानीज को क्या है ना, अगर उनके कल्चर को आप ग्लोरीफाई करो तो उनको बहुत पसंद आता है। उनको क्या, अगर हमको भी अगर कोई बोलेगा तो हम भी पसंद ही करेंगे, अपना कल्चर प्यारा होता है। Their culture is really very strong and sound, and the best part is कि they feel pride in in their culture. उनको अपने कल्चर का बड़ा वो है, गर्व है, और तो that's why everyone likes it कि बिल्कुल। हाँ, तुम कंटिन्यू करो। हाँ, तो मैंने क्या उनको बोला कि सर मैंने देखा है कि जापानीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे हाई होती है। तो अब मुझे ये नहीं पता, क्योंकि खाना तो जो यहाँ है उधर भी वही है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन वहाँ का लाइफस्टाइल क्या है वहाँ का। हाँ, तो वो उस तरीके से मैं थोड़ा क्यूरियोसिटी दिखाया अपना कि मेरे को ये चीज़ देखना है कि क्या है वो चीज़ को, अगर मेरे को मौका मिला तो वो चीज़ मैं वापस अपने कंट्री में भी लाना चाहूँगा। तो इससे उनको बड़ा अच्छा लगा कि ये एक पॉइंट का कोई रिलेशन नहीं है इसका इंटरव्यू से, बट उस पॉइंट को मैं वहाँ लाया। तो ये इंटरव्यू में मैंने बोला था, बट SOP में जो लिखा था तो वो मतलब सिंपल ही था, इनोवेशन करना है, टेक्नोलॉजिकल हब है, तो इस तरीके ही आंसर मैंने लिखे थे उसमें।
ऐसे अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, तुम वेज हो कि नॉन वेज हो? मैं वेजिटेरियन हूँ। तुमसे पूछा था इंटरव्यू में कि तुम क्या हो, वेज हो कि नॉन वेज हो? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने पूछा तो नहीं था, बट हाँ ये अपने जो सीनियर्स हमारे पहले हैं वहाँ पे, तो उनमें भी हैं और मैनेज हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन मैनेज हो जाता है। चलो, ऑल द बेस्ट। या तो अच्छा, आई गेस एक और क्वेश्चन इसमें मैं, हाँ इसमें ना एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा जो कि एक्स्ट्रा था उन्होंने, कि आप कुछ और बताना चाहोगे वहाँ पे। अच्छा, ओ एसओपी में, या जैसे एसओपी में 4 क्वेश्चन थे, 5th क्वेश्चन एक और था कि आप कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना चाहोगे, कुछ अपने बारे में कुछ ऐसा बताना चाहोगे। तो क्या है कि मेरे चारों पॉइंट्स जो थे वो तो पूरा का पूरा मैंने जो काम किया था ईमानदारी से वही लिखा था, और कुछ कुछ पॉइंट जो थे जैसे ये जापान क्यों आना चाहते हो वो सारे तो चलो सब वही लिखते हैं, तो मैंने भी वही लिखा था। बट ये वाला पॉइंट था कि थोड़ा यूनिक मैंने लिखा था, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। उसमें मैंने ऐसा लिखा था कि सर मेरे को गार्डनिंग बहुत पसंद है और मैं गार्डनिंग करता हूँ, ठीक है। और उसको मैंने किस तरीके से लिखा था कि सर कोरोना के टाइम में जहाँ हम देख रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बीमारी से रोकने के लिए क्वारंटीन है, तो पूरा दिमाग खराब हो गया लोगों का, घर में रहे, ठीक है। और अगर आप देखें तो हस्बैंड वाइफ भी साथ में रह रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं। कहीं कहीं पे हम न्यूज़ में सुनते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि क्या हो रहा है कि लोग क्या है अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, माइंड को सही जगह एंगेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने इस टाइम को अपने आप को परेशान करने के अलावा बजाय मैंने ये ऐसे सोचा कि क्यों ना इस टाइम को कहीं इन्वेस्ट किया जाए। तो उस टाइम पे मैं घर में ही रह के मैंने, मेरा पूरा एक बैकयार्ड में एरिया है, वहाँ पे गार्डनिंग किया और मैंने कई अलग अलग तरह के सब्जी फूल उगाए। और इससे क्या है, फिर मैंने पॉइंट में ये भी लिख दिया कि सर ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ये इस प्रोफाइल से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। बस इस पॉइंट से मैं ये बस कहना चाह रहा हूँ कि मैं टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज और अडेप्ट करता हूँ और अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देता हूँ, और फिर उसके बाद इवॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जिससे कि हम नेगेटिविटी हमारे दिमाग में ना आए, हम अपने आप को उस चीज़ के लिए शिफ्ट कर लें, उस टाइम के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लें। तो इस तरीके से थोड़ा लिखा, तो मेरे को लगता है कि वो पॉइंट उनको थोड़ा पसंद तो आया ही होगा, ठीक है। हालांकि इंटरव्यू में इसके बारे में बात नहीं हुई, इतना टाइम नहीं था, बट फिर भी मेरे को लगा ये पॉइंट थोड़ा रिलेवेंट हो जाता है। आप अपनी पॉजिटिविटी और अपनी पर्सनैलिटी दिखा सकते हो इसके थ्रू। Yes, because Japanese people, in fact, those Japanese, Chinese, these people, they are really, curious to know about your personality and how do you see the things. मतलब उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है कि टेक्निकली तो उनको चाहिए ही चाहिए, बट उनको ये भी है कि इंसान एक अच्छा इंसान हो, मेहनती हो, सिंसियर हो, पंक्चुअल हो, एथिकल हो, पता नहीं क्या क्या चीजें। आई गेस यहाँ पे एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक यू मेंशन्ड एंड आई थिंक फरहीन बानो शेयर आल्सो मेंशन्ड दिस थिंग, कि सीएसआरए में सीनियर्स दे रियली डू द हैंड होल्डिंग, एकदम साथ पकड़ के बहुत अच्छे से आगे लेके जाते हैं। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट योर department or at least center, that seniors are really helpful and at least you guys will be helping your upcoming students or upcoming batches. So I think ये एक मेजर मिसिंग है और डिपार्टमेंट्स में, जहाँ पे ये वाला इस लेवल की बॉन्डिंग शायद है, या मतलब पता नहीं है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता, बट हो तो ज्यादा अच्छा है इस लेवल की बॉन्डिंग। सो ठीक है, तो इंटरव्यू से पहले का हमने भी मोर और लेस सारी चीजें कवर कर ली।